आपको खा जाऊँ, आपको खा जाऊँ, आपको खा जाऊँ. Now I'm feeling the festive vibe. There is so much going on. Teardrops हो रहे हैं. So it's going to be very, very, very amazing. मेरे को पता लग रहा था that I'm gonna shut down. The bastards of Bollywood, but very fun. Checking out guys for your friend. मैं उसके मुंह पर बोल चुकी हूँ that I don't feel anything for you now. What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, हम अगर audio listeners सिर्फ ये सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, we are wearing Navratri outfits because this is Navratri special episode. Yeah. And festive season is upon us. Deeksha ने पहना हुआ है Officially, blue. festive season has officially begun. Yes. Yeah. Deeksha ने पहना हुआ है blue My color, Pink. blue and pink. Navratri outfit. मैंने डाला हुआ है all red with bows on the side. And we have another member here with us. We have two Ella. members with us, Actually, guys. Sugar Actually. भी है, but Sugar background में है. Ella decided to jump on the couch and she's like, I'm not gonna move. We tried removing her and. वो सो गई है, आंखें बंद है इसकी. Aw. Guys, Ella अब से new guest. What's up, sisters होने वाला because Ella is gonna join the podcast. Yeah. But yeah, Ella sister. is sleeping. Ella is like, do your shit, bro. I want to take my sleep. Before we start the podcast and do the normal chit chat, I just want to say that I had a breakdown before recording yes. this podcast and recording the video. So with all the festive content, I think yesterday also I was shooting at this studio and हम इतना pressure, like मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लेती हूँ that everything should be on time और ये वो. When there are so many people involved ना, तो आपको वो हो जाता है कि ये project मतलब कुछ भी miss out ना हो. Because when we go out and shoot, we source clothes from people, then we get jewelry, बैग सबका पोस्ट और स्टोरीज वगैरह होती है. देन वी वर शूटिंग ऑल्सो, मेकअप आर्टिस्ट वॉज देयर, द हेयर स्टाइलिस्ट वॉज देयर और रोहन और हम तो होते ही हैं साथ में शूट जब कर रहे होते हैं. बट एंड लोकेशन भी उस बेसिस पे होती है. समटाइम्स इट्स बार्टर, समटाइम्स इट्स हाफ बार्टर हाफ पेड ऑल्सो, जो दीक्षा ने करा था रिसेंटली. बट देन यू हैव टू शूट फॉर देम ऑल्सो. लाइक देयर इज सो मच गोइंग ऑन. आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली. आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, ऐसे 1-1.5 घंटा सोई होंगी मैं शायद प्रॉपर्ली. एंड मेरे स्टेप्स पूरे नहीं हुए थे. मैंने पहले अपने स्टेप्स पूरे करे, रात का टाइम. मैंने पहले 4 o'clock तक अपने स्टेप्स पूरे करे. मैंने बोला व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस टाइम. एंड मैं ट्रेडमिल पे बैठ के प्लान करती हूँ कल का शूट की, ये करूंगी सॉन्ग और ये और शॉर्ट और अच्छा ये करते करते ऐसे करते हैं. एंड फिर उसके बाद मैंने बोला कृतिका अब हिम्मत नहीं. सो मैंने 2 घंटे और पीछे कर दिया और फिर मैंने स्टेप्स उठ के कंप्लीट करे. एंड फिर मेरा ब्रेन ने बोला टिक चलो मूविंग ऑन. फिर आई लव टेकिंग चैट जीपीटीज हेल्प व्हेन आई एम प्लानिंग आउट माई कंटेंट. ChatGPT is the perfect virtual assistant that you can have. मैंने ChatGPT बोला ये this is my idea, this is what I want to do, please time block करके मुझे समझाओ how can I plan my day. and वो proper time block करके बताता है कि अच्छा buffer time भी देता है, सब करता है. मैंने वो follow नहीं करा, that's a different thing altogether. But there is so much happening in the background that I was so overwhelmed and मेरे को पता लग रहा था that I'm gonna shut down and I couldn't find something which is really important. दीक्षा और मैं शूट करने वाले थे एक नवरात्रि का and दीक्षा is looking at me, आजा मैं वेट कर रही हूँ, हो गया मेरा शूट. और ना आई वॉज वेटिंग फॉर हर, तो मुझे सब चीज़ें ऐसे बॉदर नहीं कर रही. तो मैंने बोला अब नहीं करना मेरे को शूट, अब नहीं करना. मैं जाके मैं ऐसे बैठी हुई हूँ गाइस बेड पे और मैं ऐसे यहाँ से मेरे टीयर ड्रॉप्स हो रहे हैं. जी बोल रही क्या हो गया, हो तो गया, चला जाओ शूट करते हैं. बट वी डिड शूट, वी चेंज द मूड थैंक्स टू सिसी. बट हमारी लाइट थोड़ी सी फकअप हो गई थी एंड तक आते आते. बट इट्स ओके, इट्स ओके. बट आई होप यू गाइज लाइक इट. तब तक जा चुका होगा. हाँ, तब तक जा चुका होगा गाइज. ओजी फैम, ठीक है, अगर ये कोई देख रहा है अभी तब तक वो रील जा चुकी होगी लाइव. सो मेक श्योर यू गो कमेंट टीयर्स इमोजी या वाटर इमोजी और राइट टीयर्स. क्या करे वैसे टीयर इमोजी, टीयर इमोजी होता है. टीयर इमोजी ना, फॉर दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग द पॉडकास्ट राइट नाउ, जो अभी तक यहाँ तक सुन भी रहे हैं, गो कमेंट द टीयर इमोजी. आई थिंक हम कोलैब में ही डाल चुके होंगे तब तक. दीक्षा मेड प्रोफाइल में नंबर इस लुक में. बट आई थिंक हम बहुत ही प्री प्लान चल रहे हैं इस बार. लाइक आई ऑल्सो डिड माई शूट, यू ऑल्सो डिड योर शूट. एंड मेरे को लग रहा है फॉर गुड 8-9 days आई एम प्रॉपरली मतलब प्लान. मेरा 8-9 days का तो नहीं हुआ. 8-9 days का तो हो गया, मारा नहीं हुआ. मतलब इसको नहीं हुआ. 5 आउटफिट्स ही तो हुए. बट हमने एक वीडियो में 3 आउटफिट्स डाले हैं. ओह मैंने जानकर ऐसा नहीं करा. I was like, मैं सोच रही थी कि सारे 5 आउटफिट्स ऐसे डिफरेंट फिर 5 का कंपाइलेशन. कैन डू दैट, है ना, स्मार्ट वर्क. बट ये वाले तीनों आउटफिट की ना वाइब सेम थी, तो मुझे वो एक ही में डालना था. और मैंने पता है वो वाला कौन सा सॉन्ग चूज करा था हमने, जरा ठुमक ठुमक चलो तिरक तिरक वो वाला है ना. वो दैट. बट या
अभी यही सोच रही थी कैसे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है. आई थिंक बैलेंस इज अ मिथ. कभी नहीं हो सकता वर्क लाइफ बैलेंस. कभी भी नहीं हो देयर आर सकता तो- डेज व्हेन यू आर हाँ. वर्किंग ज़्यादा और But I like, मतलब I like such days when you get to work every day. मतलब it's very overwhelming sometimes, but every day you're working for someone. मतलब अगर कोई ब्रांड ऐसे खुला होता है ना, like it, मनी. इन शॉर्ट वो बोल रही है गाइस मनी. मैं बता देती हूँ शॉर्ट में निपटाते हैं. लाइक इट. हम शूट पे थे तब रोहन ने बोला भगवान करे दीक्षा को 15 दिन दीक्षा शूट करे, 15 दिन कृतिका शूट करे, मुझे बुलाए. मैंने कहा आप घी शक्कर खा लो, हम एवरीडे शूट करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट या वी गेट टू वर्क एंड वी गेट टू कोलैब विद सो मेनी ग्रेट ब्रांड्स एंड इट्स अ ह्यूज थिंग एंड वी आर सो ग्रेटफुल Yeah. फॉर दैट. एंड मुझे ऐसा लग रहा है बट नाउ आई एम फीलिंग द फेस्टिव Vibes? वाइब्स एंड मतलब 2025 ना बहुत ही अजीब गया है यार, बहुत ही. एंड अभी लूनर एक्लिप्स था और इतना मेरे इतने मूड स्विंग्स हो रहे थे उस टाइम पर. एंड मैंने देखा इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों के हो रहे थे बिकॉज ऑफ लूनर एक्लिप्स जो अब भी गया है लाइक 2 वीक्स पहले जो था. एंड उसके बाद सब में बहुत चेंजेस आ रहे हैं. आई एम वेरी मतलब फेस्टिव वाइब में बहुत ज्यादा मैं आ चुकी हूँ अब. Okay. ऐसे नवरात्रि बाद लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिवाली एंड वी आर प्लानिंग आवर दिवाली पार्टी ऑल्सो. सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. विल बी चिलिंग विद फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. वी आर डूइंग इट आफ्टर 2 years. नो 3 years. 23 में करी थी हमने. 24 नहीं करी. 23 करी में? थी. 23 आई वोर करी थी? ब्लैक साड़ी, वोर अ वाइट साड़ी. हाँ तो 2 years ना. तो हमने एक ही बार तो नहीं करी बस. सिर्फ लास्ट ही नहीं करी हमने. ओह नाइस. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 अमेजिंग. और बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस बार बहुत प्री प्लान करके चल रहा है. लाइक फॉर दिवाली हाँ, ऑल्सो स्टार्टेड yeah. अर्ली एंड संयम का भी बर्थडे आ रहा है एंड आई स्टार्टेड प्लानिंग फॉर हिज बर्थडे अर्ली ओनली. एंड मुझे सब बोल रहे तू अभी से क्यों कर रही है. और मैंने 1.5 महीने पहले से सारे विलास वगैरह देखना स्टार्ट कर हाँ दिए थे. मुझे याद है. तो संयम का बर्थडे तो बहुत पहले से प्लान कर रही है. तो आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी श्योर. एंड क्योंकि ना मैंने सोचा जब ये सारी प्लानिंग आप कर रहे होते ना फॉर दिवाली ऑल्सो, हम 2 हफ्ते पहले शुरू करते हैं. डेकोर वगैरह कुछ फाइनलाइज ही नहीं होता. फिर उस टाइम पर इतना स्ट्रेस होता है. सो मैंने कहा स्लोली लेकर चलते हैं. एवरीडे मतलब अल्कोहल, फूड, केटरिंग एंड सब कुछ अब वो हमारा सॉर्टेड है. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सॉर्ट आवर दिवाली डेकोर. डेट इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. एंड फॉर संयम ऑल्सो द विला इज सॉर्टेड, द प्लेस इज सॉर्टेड. अब मैं ऐसे स्ट्रेस फ्री हो गई हूँ. नाउ आई जस्ट हैव टू take care of the gifts and everything, so it's going to be amazing. Yes, it's going to be amazing. And the fact मुझे ऐसा लगता है when you pre-plan, yes वो वाले days बहुत hectic हो जाते हैं, but then you relax in the end. अगर आप फटाफट भाग Yeah. के last minute कर रहे हो तो it's a task. But usually guys जब all of the content creators and all of the brands जिनके लिए दिवाली is the main season, they usually शूट एंड प्री प्लान एवरीथिंग ओनली. एंड वो सब पहले सब कुछ हो रखा होता है. एंड इनफैक्ट जब अक्टूबर, जैसे इस बार दिवाली अक्टूबर में है तो सब बहुत जल्दी है. तो फर्स्ट ऑल में जिससे भी बात करी सब बोलते हैं यार लेट आती है तो फील आती है कि अच्छा आराम से यू वेट फॉर इट. एंड उसके बाद सीधा न्यू ईयर मतलब आने वाला होता है, वेट कर रहे थे दिसंबर में लोग. तो लास्ट ईयर भी आई थिंक नवंबर में थी, 20 नवंबर के अराउंड थी दिवाली. नहीं हाँ, इतनी लेट थी. हाँ 11th या 28th के अराउंड थी. ओ और 23 में भी नवंबर में थी. इस बार बहुत ही जल्दी आ नहीं गई. आई थिंक सो इतनी लेट नहीं थी. हम 2nd 3rd के अराउंड तो गोवा गए थे ना. हाँ 1 नवंबर, हाँ. 31 या 31 अक्टूबर वो हैलोवीन और वो साथ में हाँ था. दिवाली क्लैश हुआ था. या Yeah. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर Halloween, हैलोवीन yeah, आल्सो. फाइनली thank God. दिवाली. इतने टाइम बाद ऐसे हो रहा है दिवाली एंड हैलोवीन या क्लैश और नहीं हो तेरा रहा. मेकअप के लिए तो इट्स अ वेरी Yeah. बिग थिंग ना. हैलोवीन बहुत कुछ क्रेजी लुक करी हो इस बार. Exactly, and so many things are happening right now. We are going to shift our studios and बहुत सारी चीजें बैकएंड में चल रही है. So अभी हमने थोड़ा सा दिवाली के टाइम पर थोड़ा सा स्लो ले रहे हैं like. But I'm very happy. The work is going amazing. Touch wood. Touch wood. अगर after pandemic अगर हम देखें तो I think last 2 years work was really bad. This year it's really really good and ऐसा लग रहा है वापस things are coming back on track. हम डेट्स वगैरह और ये सब डिस्कस करे थे तो रोहन और मैं भी यही बात करते. रोहन बोलता है कि अभी मुझे इधर जाना है, इसके बाद मेरे को सुबह जाना है. तो मैं वही बोल रही थी कि लाइक वी सो ग्रेटफुल दैट वी गेट टू वर्क. आई नो मतलब और जो भी समवन हु इज वर्किंग रेगुलरली ना और फ्रीलांसर्स स्पेशली अगर कुछ हमारा एक सीजन और हमारा एक पीरियड आता है ना हम पूरी जान लगा के मुझे लगता है अच्छा ये भी करना, हाँ इधर भी पहुंच जाएंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे. सो बिकॉज बाकी डेज पे इट्स अप एंड डाउन. एंड मैं कल ही किसी को बता रही थी, आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड दैट पर्सन वाज लाइक कि बट ऐसा क्यों होता है तुम्हारा बिजनेस, ऐसा क्यों होता है कि फ्यू मंथ्स अब तुम्हारा इतना स्पाइक करता है फिर कभी नहीं होता. मैंने बोला दैट्स वन थिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज. जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर अभी दिवाली की वजह से इट्स गोइंग नाइस. जो दिवाली के आसपास वाले 10 डेज होते हैं और जो उसके बाद वाला 10-15 डेज होता है वी डोंट गेट एनी वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड समटाइम्स आप जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है जब भी तब भी वी डोंट गेट बिकॉज बजट खत्म हो रखे होते हैं ब्रांड्स वगैरह के. एंड देयर आर फ्यू मंथ्स जब आपको नहीं पता है फिर गोना वर्क द नेक्स्ट मंथ. सो दैट्स वाई कभी भी कोई बोलता ना आई वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, मैं आप सबको ये वाली एडवाइस देती हूँ विच इज़ एन ऑनेस्ट मतलब एडवाइस. अगर मेरे को शायद जब मैंने स्टार्ट करा था मुझे कोई बताने के लिए नहीं था. सो इसलिए डोंट लीव योर जॉब. अगर ये इतना अनस्टेबल है ना, आपने अभी अभी स्टार्ट करो और आपको लग रहा है वाओ आई एम गेटिंग सो मेनी ब्रांड्स विच इज़ अ गुड थिंग. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है पॉजिटिविटी
सही आप थ्राइव करते हो थिंकिंग येस आई विल गेट वर्क नेक्स्ट मंथ भी, बट जब तक आपको 1-2 साल तक स्टेबल इनकम लग रहा है ना कि अब मेरी ऐसी इनकम आ रही है कि अगर 1 मंथ वाला भी मैं 2 मंथ्स चला सकता हूँ, देन ओनली लीव योर जॉब, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, एक फ्रेंड ही मुझे कोई अपनी स्टोरी बता रहा था कि दे आर ऑल्सो ब्लॉगर्स, तो उनको फ्रेंड बता रहा था कि आई जस्ट स्टार्टेड, आई वॉज लुकिंग एट योर प्रोफाइल एंड आई थॉट ठीक है मैं छोड़ देती हूँ, एंड सडनली उसको कुछ काम ही नहीं आया, एंड शी वाज लाइक आई स्टार्टेड माई जॉब अगेन. Yeah. सो जस्ट साथ में, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, जो 9 to 5 कर रहे होते हैं उनको लिटरली टाइम नहीं मिलता कि कब करें, बट धीरे स्लो ग्रोथ, बट जब तक स्टेबल ना हो मेक श्योर यू डोंट लीव योर जॉब्स एकदम से, साथ साथ ट्राई करके जितना भी स्लोली बट ग्रेजुअली हो, दैट्स मच बेटर. That's true, क्योंकि एक्चुअल में लोगों का मिसकंसेप्शन है दैट वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन, यू स्टार्ट विद द कंटेंट क्रिएशन एंड स्टार्ट अर्निंग मनी, Yeah. बट दैट्स नॉट ट्रू. आप यार कभी भी आप किसी भी एक चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो, आप देखते हो उसका बैक एंड कि आपका कैसा, मतलब उनका कैसा काम चल रहा है या फिर क्या चल रहा है, उनके व्यूज़ है नहीं है, एंगेजमेंट कैसी है, आर दे न्यू, दे ओल्ड. सो आप धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करते हो, एंड मुझे लगता है टाइम लगता है हर चीज़ को ग्रो करने में. सो अगर आप उस टाइम पर इफ यू लीव योर जॉब, देन आप दोनों साइड से नॉट अर्निंग एनीथिंग फॉर योर लाइक फॉर ब्रेड एंड बटर ऑल्सो, आपको बहुत मुश्किल आ रहा है. आई थिंक आपका फिर वो प्लेटो हिट हो जाता है, यू जस्ट break down होगा and you'll just stop doing everything. So it's better कि balance both the things. I'm not saying don't start with content creation. Definitely everyone should post things on social media because it's the best way you can just connect with the world and show your creativity and everything, but don't quit anything. Yeah, I think everyone, not just content creator, if you have a brand, if you're doing photography, events, anything that you feel like I should share it with the world, do that, because मुझे लगता है आजकल के टाइम में सोशल मीडिया प्रेजेंस हर इंसान की होनी चाहिए, एंड इट्स लाइक योर रेज्यूमे, Yeah. एंड सो मेनी पीपल गेट वर्क थ्रू सोशल मीडिया, नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएटर्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी प्रोफाइल्स मैंने डिस्कवर करी हैं, जिनको मैंने डिस्कवर करा है थ्रू इंस्टाग्राम, सो मेनी ब्रांड्स दैट आई डिडंट नो मैंने इंस्टाग्राम पे एड्स वगैरह के थ्रू डिस्कवर करे हैं. सो आई थिंक डेफिनेटली हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड धीरे धीरे बिल्ड करो, जैसे लगता है, क्योंकि मेरे को ही वही द सेम पर्सन जिसने अपनी जॉब छोड़ दी थी, दिस पर्सन वाज आस्किंग दिस पर्सन को क्यों नहीं, आई एम नॉट गेटिंग वर्क और ये सब, तो वो यही बोल रहे थे उसको कि अभी लिटरली 2-3 मंथ्स में देयर इज नो स्टेबिलिटी, मतलब आपको वो टाइम लगता है बिल्ड होने में. आई थिंक मुझे इन माई हेड आई फील 1 year 2 years डाउन द लाइन जाके आप थोड़ा सा सेटल फील करने लगते हो कि चल आई कैन पे माई सैलरीज, बिल्स. हाँ, देर आर सम केसेस जो लिटरली दे गो वायरल एंड दे गेट लॉट मैनी ब्रांड्स ऑन बोर्ड और वो सब चीज़ें. अगर वो केस नहीं है, जस्ट बी पेशेंट बिकॉज इट विल ग्रो स्लोली बट श्योरली, इट ग्रोज. That's true. And मतलब अभी I was watching this series, Do You Want a Partner? Oh yeah. And it's really, really amazing. The acting in that series of Tamanna, Diana, and Sufi was also there. So the cast was really nice and it was really, really fun. And उसमें basically they start a company of beer and वो उसपे पूरे series में होता है how वो कैसे उनकी struggle दिखाई गई है as गर्ल्स एंड बियर इंडस्ट्री में, लाइक लड़कियों की ऐसे रिस्पेक्ट नहीं करते, जो अगर लड़का होता है तो दे लिसन टू देम प्रॉपरली एंड ऐसे कर. सो पूरी उनकी स्ट्रगल दिखाई गई है एंड हाउ दे सेल बियर थ्रू सोशल मीडिया, लिटरली थ्रू सोशल मीडिया. विद इन 2 weeks वो अपने बियर को प्री लॉन्च होने से पहले वो इतना ज्यादा ऊपर बढ़ा देता है कि जब हाइप अप कर देते हैं कि जब वो एक्चुअल में लॉन्च होती है वो सोल्ड आउट हर जगह वही नाम होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. सो सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी ह्यूज रोल एंड आई थिंक डेफिनेटली एवरीवन शुड बी ऑन सोशल मीडिया. Plus, I saw The Bastards of Bollywood, and yesterday I finished. I binge watched that. Launch? Okay. Yeah, yesterday only. मेरे को expected नहीं था, but the direction, the creation is really amazing. Like obviously आर्यन खान का भी डेब्यू था, रेड चिलीज के अंडर था, सब कुछ था, but एक्चुअल में ना ऐसे हार्ड वर्क दिख रहा है उसमें, जैसे इतने टाइम. व्हाट इज इट अबाउट? बॉलीवुड के ऊपर या लाइक देयर इज दिस न्यू कमर जो आता है बॉलीवुड में, और एक नेपो बेबी होता है कि वो उनका दिखाया है न्यू कमर होता है और एक नेपो बेबी होती है लड़की, तो उन दोनों का कपल दिखाया होता है एंड बेसिकली अराउंड पॉलिटिक्स ऑफ बॉलीवुड, बट वेरी फन. इतने सारे कैमियोज है ना, इमरान हाशमी इज देयर, रणबीर कपूर इज देयर, करण जौहर इज देयर. करण जौहर की एक्टिंग भी इतनी फनी थी, पूरी कास्ट ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है सब ने, लाइक एक भी ऐसा नहीं था जिसके लिए आई कैन से अच्छा द एक्टिंग वाज बैड. वाज सो गुड एंड आई एंजॉयड अ लॉट. मेरे को 8 hours लिटरली अपने पता नहीं लगे. कल मैंने पूरा दिन बैठ कर बस वही देखा है रात को एंड उसका जब खत्म हो गया यार क्यों खत्म हो गया, बट सीजन 2 विल डेफिनेटली कम, बट अमेजिंग, रियली गुड.
Good Yeah. series. Everyone should go and watch it. Even I was watching वो वाला You Want a Partner I think मैं और निकिता जब मिले थे so we were discussing and we both bond over business and ये सब चीज़ें तो we were discussing कि we'll watch it ये साथ में and I feel like that's so true मतलब एक चीज़ बट मैंने उससे पता है क्या सीखी my opinion never do business with your partner मतलब कहीं ना it does hamper you I feel that's my opinion बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वर्क कर भी रहे हैं but it does hamper your वो अब if you look at us चल ठीक है हम पॉडकास्ट कर रहे हैं but when it's too much जब हम सब चीज़ें साथ में कर रहे होते हैं it creates क्या बोलूँगी उसको मतलब it creates a wall between us also कि तू टाइम पे आ तू ये कर तू वो कर नहीं मेरे को नहीं करना तू परेशान करे like वो काम रिलेटेड चीज़ें मुझे लगता है होती है फिर आपको लगता है अरे दूसरा बंदा उतना रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है फिर मैं क्यों अच्छा नहीं मैं कितना पीछे भागूं तो वो अच्छा रहता है दैट्स डिफरेंट मतलब कभी ना कभी मुझे ऐसे लगता है इफ़ यू आर वर्किंग तो कहीं ना कहीं तो आता है बीच में प्रॉब्लम स्पॉइलर अलर्ट गाइस यू कैन स्किप द नेक्स्ट 10 सेकंड्स डू यू वांट अ पार्टनर में लास्ट में वही होता है डायना पेंटी लास्ट में ये डिसाइड करती है कि गुड फॉर यू एंड गुड फॉर अस दैट वी डिड दिस मैंने तेरे लिए करा था और अपने लिए भी ऑब्वियसली बट आई वांट टू डू समथिंग अपने लिए क्योंकि मुझे लगता है दो लोगों में से I choose my एनर्जी friend. हाँ या वो यही बोलती है सो दैट इज आई थिंक ट्रू That's really true. And अगर हम friendship की ऐसे बात करें, let's talk about friendship in this podcast. What do you feel about two girl best friends? टू गर्ल बेस्ट फ्रेंड मेरा कभी ऐसा पर्सनली बॉन्ड एक गर्ल बेस्ट फ्रेंड के साथ प्रॉपर ऐसा नहीं बन पाया कि तू ही मेरी जिगरी है तू ही मतलब एवरीडे मिलना रात को भी उनके साथ हैंग आउट करना सब करना मेरी कभी ऐसी कोई फ्रेंड नहीं बनी है आई थिंक मेरे हमेशा से ऐसा रहा है कि गर्ल बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा रही है रादर देन बॉय बेस्ट फ्रेंड वो उस चीज़ में बट वन थिंग आई रियलाइज्ड इट डज चेंज बहुत मुझे ऐसे लगता है वन थिंग दैट आई seen and I felt when the guy enters in the picture वो है ना अगर किसी का बॉयफ्रेंड बन रहा है या someone is getting married the dynamic changes a lot and मुझे ऐसा लगता है sometimes there are some things जैसे वो उसका न्यू वर्ल्ड है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो आपको टाइम दे फॉर एग्जाम्पल if someone's getting married उस टाइम पे उसको इतनी अपना टाइम अपने इन लॉज एंड न्यू पीपल न्यू एनर्जी आपको डिनर्स वगैरह आप बहुत चीज़ें कर रहे होते हो you're adjusting with your partner also बट मैंने बॉयफ्रेंड वाली चीज़ भी बहुत देखी है एंड आई पर्सनली आई डोंट नो अगर मैंने कभी करी होगी मेरे फ्रेंड बता पाएंगे बट आई ट्राई नॉट टू डू इट क्योंकि मुझे पता है दूसरे बंदे को कितना हर्ट होता है इमेजिन you've helped your friend you've been with your friend throughout और आप चाहते हो यार तू खुश रहे तू ये कर and as soon as that person finds a partner like bye I'm going so that is abandonment or using someone I feel and you cannot and I think being vocal also even if someone is going through that ना किसी की लाइफ में कोई आया तो वो बोले यार मैं शायद मैनेज नहीं कर पाऊंगी I'm gonna take a step back और तू ये मत सोचियो that just going off for like good 6-7 months वो पूरा डायनामिक ऊपर नीचे हो जाता then you can go back to normal but it takes a lot from both sides फिर दोनों चीज़ें I think one thing I've realized with friendship is last कुछ years में जो friendship बनी ना उनके through I've realized कि you can find a friend or a person like you no you can be different उसके किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होंगे मेरे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होंगे एंड वी वॉन्ट बी जॉइंड बाय द हिप ऑल द टाइम बट मेरी इतनी हेल्प मेरी गर्ल फ्रेंड्स ने करी ना उस टाइम में एंड आई नेवर फॉरगेट दैट बी इट ओवरकमिंग अ ब्रेकअप और एनीथिंग एंड बी इट वर्क रिलेटेड मुझे लगता है वो फील बहुत ज़्यादा बेटर कर पाते हैं बट आई पार्टनर वाला आई सीन कि बहुत चेंज होता है जब भी बॉयफ्रेंड या पार्टनर पिक्चर में आ जाता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मेरा भी एक्चुअली में यही मतलब ओपिनियन है सो व्हेन आई केम इनटू द रिलेशनशिप मतलब मेरा फर्स्ट ईयर था रिलेशनशिप का सो आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड शी इज बीन डेटिंग दिस गाय फॉर 5 years एंड शी इज मैरिड नाउ सो शी टोल्ड मी वन थिंग शी इज लाइक दीक्षा आई लॉस्ट माय फ्रेंड्स आई लिटरली लॉस्ट टच विद माय फ्रेंड्स फॉर 3 years बिकॉज दिस गाय वाज एवरीथिंग वाज माय वर्ल्ड एंड माय वर्ल्ड यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड दिस गाय कहती आई टेल यू वन थिंग नेवर लूज योर फ्रेंडशिप्स बिकॉज ऑफ योर पार्टनर बिकॉज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन now I am settled down with him and everything now I miss my friends I miss that bond which I lost because of me yeah and अब कहती मैं इतना ट्राई करती हूँ to get that bond every day plans बनाना ये करना but it's really hard for me also कि balance करना अब जो पहले करती थी and I abandoned my friends because of my partner और उस टाइम आपको लगता है कि अरे अभी मेरा पार्टनर मुझे ऐसी खुशी दे रहा है आई डोंट नीड एनीवन ये वो बट सूनर और लेटर अगर आप किसी के साथ भी रहने लग जाते हो बहुत नॉर्मल हो जाता है दैट पर्सन यू ओनली टोल्ड मी दिस लॉन्ग टाइम बैक कि जब मैं मे बी रहने लग जाऊंगी संयम के साथ तो फिर मेरे लिए ये घर आना तुझसे मिलना बहुत डिफरेंट हो जाएगा है ना सो एंड स्पेशली अपने पार्टनर पे भी उतना बर्डन नहीं होता यार क्योंकि सम डेज योर पार्टनर विल गेट बिजी देन यू विल हैव एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस एंड देन यू विल फाइट कि व्हाई आरंट यू गिविंग मी द सेम अटेंशन दैट यू यूज्ड टू है ना आई फील दैट yeah and तभी उसने मुझे ये चीज़ बोली थी कहती there is only one advice for you
I know it will seem everything, like he'll seem everything to you right now. You just want to meet him, go out with him, and just go on dates with him. Kehti, but don't make time for your friends, because I did that and I regret it, but I don't want you to regret it for the rest of your life, because I still regret those times, those plans that I cancelled with my friends just because I wanted to be with my partner. Kehti, now I'm with him, now I miss my friends and that bond. एंड मुझे नहीं पता वो कभी मैं वो टाइम वापस लेकर आ पाऊंगी. सो मेरा उसका वो जो एक एडवाइस था ना, मेरे माइंड में से स्टक हो गया था. लाइक आई विल नेवर कैंसल ऑन माई फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ माई पार्टनर. या देयर आर डेज व्हेन समथिंग इज वेरी ऑफ और समथिंग इज वेरी स्पेशल हैपनिंग विद माई पार्टनर, देन आई कैन कैंसल माई प्लान्स. बट जब तक कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, आई वोंट. एंड मैं पर्सनली बहुत एज अ फ्रेंड मैं पर्सनली बहुत ट्राई करती हूँ, एंड माई फ्रेंड्स कैन वाउच फॉर दिस ऑल्सो, दैट आई try to make plans with my girlfriends, but somehow they are in that situation right now which you were referring to, that my friend just found a partner or she's dating someone, and जब भी वो ऐसे होता है ना, when a guy comes into the picture, she just ghosts us. जब भी हम प्लान कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, she never replies, and एकदम से जब उसका मन करता है, when she wants to go out with her partner and with us, then she texts. So I was talking to a friend of mine, a guy best friend. I was talking to him. So I was telling him the same thing. I was like, I don't vibe with girls anymore. Like, I have girlfriends. Whenever I'm a boy. No, I seriously feel that I vibe with. I know तू क्या बोल रही है. हाँ, with guys more, because I feel they're very chill in a way. Like अभी जैसे I was talking about that friend only with him. I was like, I don't understand her. Like कोई भी picture में आता, she just left. And she just left. She left the chat. Actually, she left the chat ऐसे ही कर and पता नहीं हमेशा ऐसे होता. So he was telling me the same thing. He was like, but she'll come back and वो कोई भी plan बनाएगी, will be there. I was like, are you taunting me right now? कहता, yeah, I am taunting you because you are this person. अभी जितना भी बोल ले, जैसे ही उसका text आएगी, you will go there. I was like, now I won't go there, but if, for example, if I'm going somewhere on a Saturday night, and if she says, okay, I am also coming there, Anika, but I won't ignore her. I'll say that, okay, I'm coming there, but I won't change my plans because of her. उसने फिर मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा ऐसे वो attached feel करती थी, and इतना मेरे को होता था कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. Then he told me, कहता, just be neutral with her. You have to be neutral with her. No hate, no love, because this pattern is going to happen again and again, because it's been like what, 5th or 6th time she's doing it. So ab jaakar I'm very normal, and she's a good friend of mine, but now I'm very neutral. If she texts, then I'll text her back. If she calls, I'll call her back. ऐसा कर but आपके अंदर से ना वो attachment और वो सब खत्म हो जाता है. You don't feel for that person anymore. Like मैं उसके मुंह पर बोल चुकी हूँ that I don't feel anything for you now. अगर तू कभी बुरे उस पे होगी, I'll help you, but अब वो लव एंड वो वाला नहीं रहा है. आई कांट हेल्प इट, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, बट आई कांट बी देयर फॉर यू व्हेनेवर यू नीड मी. सो आई थिंक आई हैव रीच्ड दैट पॉइंट नाउ, एंड शी ऑल्सो नोज. अच्छा ठीक है, वो जब भी होगा आई कम बैक, एंड ऐसे कर उसको भी आई थिंक शी इज़ वेरी मच ओके विद द situation and everything. उसको समझ ही नहीं आ रहा. Even though I told her कि listen, we are very important in our life. Once you get settled into a relationship, then you will miss us, and तब हम वहाँ पर तेरे साथ नहीं होंगे, खड़े होंगे. Then you will miss us. I do. उस टाइम पर नहीं होता. People say अच्छा तुम्हें तुम्हारा दिल रखने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, I do miss. और फिर बाद में ऐसे आपको same कर देते. Sissy, I've been there. You know that. In the exact same position. And you know what? I've been so scarred, but I'm so stupid. मेरे साथ पहले भी हो रखा है. स्कूल डेज में हुआ, फिर कॉलेज में हुआ. इफ आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, आई एम स्टूपिड. मुझे से बट देयर इज वन थिंग अबाउट मी, आई विल गिव माई ऑल. एक बारी में देती रहती. ओह दैट साउंड्स वियर्ड, बट आई विल गिव माई ऑल टू वन पर्सन, एंड मैंने एक चीज़ अपने बारे में चेंज करी. मैं बताती भी हूँ कि दिस इज द प्रॉब्लम, 1 twice thrice. उसके बाद मेरी बस हो जाती है, मेरी एक्चुअली बस हो जाती है, एंड आई डोंट हेट दैट पर्सन, बट मेरी मेमोरीज हमेशा मेरे साथ रहेंगी. मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छी बात बोली थी. जब वो बोलती थी ना, मुझे लगता था यार क्या बोल रही है वो. शी वाज सेइंग, निकिता ओनली, वो मुझे बता रही थी कि ना देख कृतिका, ये पर्सन ना तुझे नॉट अबाउट दिस पर्सन बट कुछ और, कि ये पर्सन ना तेरी जर्नी में आया था तुझे A to B लेके जाने के लिए. इट्स ओके, देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स, देयर आर डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ जो आपको कहीं ना कहीं तक आते हैं. एंड हमारे कितने स्कूल के फ्रेंड्स हैं, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके वर्क रिलेटेड फ्रेंड्स हैं, या चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और वो डिफरेंट चैप्टर्स के पार्ट हो सकते हैं. देयर आर, आप भी अगर इफ़ यू लुक बैक एंड इफ़ यू थिंक अबाउट ऑल द फ्रेंड्स दैट यू हैड इन योर लाइफ, आपने सोचा होगा ये फ्रेंड तो मेरे हमेशा लाइफ में रहने वाला है, इसके साथ तो मैंने ऐसे मोमेंट स्पेंड करे हैं कि मुझे कभी इसके बिना कोई बड़ा मोमेंट देख ही नहीं पाऊंगी. कल आई वाज विद माय कजन एंड वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट बचपन की थिंग्स, एंड लिटरली वो मेरी बचपन में ना जान होती थी, उसमें बसती थी. और वो यही बता रही थी अपने हस्बैंड को कि हम कहीं भी जाते थे ना, तो उन सबको पता था ये दोनों तो साइड पे हो जाएंगे, ये दोनों अपना आराम से बैठ के वो अलग हो जाएंगे, इनका कुछ अता पता वो वाले फ्रेंड्स. लाइक
लिटरली जॉइंड बाय हिप। प्यूबर्टी हमने साथ में, हमने ऐसी बिल्कुल फ्रॉम फेसबुक ऑकवर्ड वो वाले फेस से, मेरे से कल ईमेल आईडी मांग रही थी, मैं कल सबकी मून साइन स्टार साइन सब बता रही थी बैठ के, मैं ज्ञानी वो बनी हुई थी एस्ट्रोलॉजर, बट शी वाज लाइक पागल तूने ही बनाया था मेरा जीमेल आईडी ये वो, और मैंने पता नहीं क्या बना रखा था। तो आई रिमेंबर्ड एवरीथिंग, बट आई जस्ट फेल्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ इन दैट मोमेंट। मैं ना बहुत अटैच हो जाती थी लोगों से, एंड हमेशा ऐसा हुआ है, मैं अपना कोई वो नहीं कर रही, शायद ये मेरी वीकनेस है, वो हमेशा कुछ ऐसा हो जाता था कि दैट अदर पर्सन मूव्ड ऑन एंड आई वॉज ऑलवेज लेफ्ट हैंगिंग हमेशा। बट मैं कल इतना प्राउड फील कर रही थी दैट आई हैव बिकम दिस पर्सन दैट मैं इंसान हूँ, मुझे अभी भी अफेक्ट होता है, बट आई डोंट लेट इट अफेक्ट मी जिस लेवल पे मुझे पहले होता था। मैंने लिटरली अपना सेक्शन चेंज कराया था अपनी बेस्ट फ्रेंड के बीच में, उसको अपनी ट्विन मिली, उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया, एंड 1 year आई वाज डिप्रेस्ड, मेरे ग्रेड्स खराब थे सब, मैं लिटरली डिप्रेस हो जाती थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती थी उस बंदे से। अब मुझे अपनी ना बाउंड्री समझ आ गई है कि यार ये भी इंसान है, इट्स ओके, दैट पर्सन कैन चेंज हिज और हर मूड। मेरे लिए कोई पूरी लाइफ वैसा नहीं रहेगा, उसकी लाइफ है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। आई कैन नॉट टेल यू टू लव मी। इफ यू डू डिसाइड वन डे आई डोंट वांट टू बी विद यू, तेरे साथ नहीं घूमना है वो, मेरे को बहुत बुरा लगेगा, बट देन आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि तेरी लाइफ है, आई कैन नॉट लिटरली फोर्स मुझसे प्यार कर, मुझसे प्यार कर, ये अंदर से आता है। येस आई कैन टेल यू प्रॉब्ली कि आई एम नॉट लाइकिंग आवर बॉन्ड नाउ डेज, आई एम नॉट लाइकिंग दिस, ये सब चीज़ें, उसके बाद भी इफ दैट पर्सन इज डिसाइडिंग टू डू दैट, एंड पता है हमेशा बाद में सबको रियलाइज होता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं करा ना कभी भी, और अब यू बिन देयर फॉर दैट पर्सन एंड दैट पर्सन डिसाइडेड टू टेक यू फॉर ग्रांटेड कि यार ये तो बैठी है ना, छोड़ ना हो, दैट पर्सन रियलाइजेज जब उस टाइम पे कोई नहीं होता उसके आसपास। ट्रू। So if you think your friend is not realizing it right now, obviously you've moved on. वो वाली चीज़ वैसे कभी नहीं हो पाएगी, but she's gonna realize I missed out on a person जो मुझे जैसी मैं हूँ वैसे प्यार करता था। That. But I still, मतलब I have friends, I have girlfriends, I still prefer going out with them over my other friends, like guy friends. I don't know why it's so different when you go out with the girlfriends. You feel very different. ऐसे इतना chill zone में होता है तुम, like मैं संयम को भी ये बोलती हूँ, I would any day prefer going out with them over you, because on a Saturday night just feels different. Yeah. When I'm with my girls and I'm just chilling at the bar and we're looking around, not just checking out guys, ऐसा नहीं है। They can check out guys, they are single. Yeah, they are single. तो अब ऐसे मेरे को, और ना मेरी फ्रेंड ऐसी होती है कि यार मेरी विंग वुमन बन जाना, एक बार देख, वो देख रहा है मुझे ऐसे, तो ना Checking out guys for your friend. yeah, so it's very fun in a way. It's very fun. I really enjoy going out with them. I think my bond with guys is it's better. I mean, I connect with them more. होता है ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। I'm sure there are lot many people in the audience also they feel कि उनको हमारा banter समझ आ रहा है और वो एनर्जी समझ आ रही है। समटाइम्स गर्लफ्रेंड्स के साथ इट्स मोर अबाउट इमोशनल बॉन्डिंग कि आप वेंट कर सकते हो, दिल अंडरस्टैंड यू जैसे तू बार वाला भी बता रही है, आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड एंड इफ शी सिंगल तो हम लाइक ओ डू यू लाइक दिस गाय, वो ऐसे करके ऐसे नहीं ओ सही लग रहा है वो, वी चेक आउट इन अ डिसेंट वे दैट ओ डू यू लाइक हिम, ये वो डू यू वांट टू टॉक टू हिम, ऐसे करके यू पुश योर ऐसे गिगली फीलिंग दैट इज विद योर गर्लफ्रेंड्स। आई थिंक मुझे लगता है जब आपकी गर्ल गैंग होती है ना, तो मुझे लगता है आप हर प्लान्स में ऐसे सारे ना बिलोंग फील करते हो आप। आई डोंट नो, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, बट इफ आई हैव 2 गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स, आई हैव 2 गर्लफ्रेंड्स, एंड जब हम तीनों जा रहे होते हैं ना, मुझे ऐसे बिलोंग फील करती हूँ मैं अपने आप को, ओ आई ओन दिस प्लेस ऐसे। और अगर आप लड़के के साथ होते हैं, इवन दो ही इज माई गाय बेस्ट फ्रेंड, बट अगर मैं उसके साथ जा रही हूँ ना, ही विल मीट अदर पीपल ऑल्सो, एंड at some point of time I'll feel ऐसे lonely and alone. When you have girl best friend, you feel like अच्छा चल washroom भी साथ चलते हैं, everything just do together. You can't do it with the guy. You know, उसके और भी friends होते हैं, और फिर ऐसे boys talk होती है तो आपको अलग कर देते हैं। हाँ ट्रू। वो चीज़ें I don't like. तो I'll any day prefer girlfriends over guy friends, but मेरे को लगता है मेरी जैसी मुझे कभी कोई ऐसी बिल्कुल नहीं मिली है। अगर मुझे मिल जाती ना, मैं फक कर देती पूरे वर्ल्ड को। बट इट्स गुड टू हैव समवन डिफरेंट आल्सो। सोच अगर तू और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होएंगे तो हम क्या ही सीखेंगे एक दूसरे से, क्या ही मजा आएगा। मतलब कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए जो आप सिमिलर हो फ्रेंड में, जिस पे आप बॉन्ड करो, बट कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती है तो मजा आता है। हाँ, बट इफ वी सी डू यू वांट अ पार्टनर, अगर हम उसका कॉन्टेक्स्ट ले, दे डू एवरीथिंग टुगेदर इन अ वे। So I wanted a friendship like that, कि कभी भी कॉल कर लो, कभी बाहर चल जाओ, going out together and going on coffee together and just meeting parents and everything. I wanted a friendship like that, which I had when I was in school, but now I just
थिंक कि अगर ऐसी फ्रेंडशिप होती है आई विल बी वेरी हैप्पी. Yeah, we always long for something which we don't have. Yes, I हमेशा think. ऐसा होता है. I think. Yeah. मतलब मुझे लग रहा है मेरे पास आई हैव डिफरेंट गर्लफ्रेंड्स लाइक आई हैव फ्रेंड्स बट जिससे मैं बात कर सकती हूँ करती हूँ बट एक ही सारी क्वालिटीज एक बंदे में नहीं है. आई थिंक आई एम फाइंडिंग अ गुड गर्लफ्रेंड इन माई लाइफ. जो पार्टनर में क्वालिटीज ढूंढ रहे होते ना लोग, मैं एक गर्लफ्रेंड में ढूंढ रही हूँ. आई ऑलवेज टेल दिस टू कृतिका ऑल्सो दैट यू आर वेरी वेरी लकी, टच वुड, यू हैव सच गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ. दैट्स वेरी फॉर्चुनेट ऑफ यू. एक बहुत लोगों के पास नहीं होता. एंड यू हैव मतलब द एग्जाम्पल तेरे सामने मैं ही एग्जाम्पल हूँ एक दैट मैं तेरे को ये बोलती रहती हूँ आई विश मेरे पास ऐसा कोई होता है ऐसा कोई होता है. बट मतलब आई नो मेरा वो सारा बॉक्सेस टिक कर देते हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह. बट आई स्टिल विश दैट आई हैड दैट वन फ्रेंड. बट यू नो व्हाट इश्यूज मुझे लगता है ऐसे तूने भी देखी है फ्रेंडशिप्स सबके साथ हुए होते हैं. मैं कल यही बात करी थी अपनी कज़न से भी कि शी वाज सेइंग कि यार मैं ना आई एम द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन. अगर मैं लाइफ में किसी से बात कर रही हूँ, कोई मुझे वो कर रहा है ना, तो आई विल बी ओके. आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज अ शॉकर फॉर मी. मैंने बोला ऐसे लोग भी है दुनिया में जिनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. बट ऐसे है बहुत. जस्ट लाइक आई डोंट केयर. मतलब मेरे को ऐसा लगता है येस आई विल मूव ऑन. मैं उसको भी बोली थी यार बट प्रॉब्लम सबके साथ आती है किसी भी फ्रेंडशिप में किसी भी रिलेशनशिप में. सो यू विल सिट डाउन विद दैट पर्सन एंड टेल दैट पर्सन कि यार दिस इज द प्रॉब्लम, डू यू थिंक वी कैन वर्क ऑन इट. एंड दैट्स हाउ योर रिलेशनशिप ऑल्सो ग्रो स्ट्रॉन्गर. मेरी भी ऐसे फ्रेंडशिप में इश्यूज आए हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है वो उसने मुझसे बात करी है, मैंने उससे बात करी है. एंड देयर वर डेज जब हमें लगा था शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे. एंड वी मूव्ड ऑन. तो मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली अ गुड फ्रेंड इज समवन जो कुछ भी हो जाए ना आप पे गिव अप ना करे कभी. दैट्स ट्रू. एंड इफ अ पर्सन जैसे तू किसी उसकी स्टोरी बता रही है ना, मुझे जब उसका मन करता है रिप्लाई कर देती है. मुझे भी ऐसे एक ये प्रॉब्लम बहुत बार मेरे साथ भी हो चुकी है. और मुझे ना तब ऐसे यूज्ड फील होता है. लाइक आप 3-4 मंथ्स के लिए गायब हो रहे हो और उसके बाद आप ऑल ऑफ अ सडन किसी की लाइफ में आ रहे हो. बट यू चोज नॉट टू बी अ पार्ट. अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीरियस इशूज. किसी की लाइफ में ऐसा भी होता है लाइक कुछ और सीरियस इशू है, नॉट दैट. बट जस्ट बिकॉज यू फील लाइक अब मेरा पार्टनर इंपॉर्टेंट है सो आई एम नॉट गोना लुक एट यू. दैट्स सो बैड. आप ठीक है आप फ्रीक्वेंसी कम कर दो. यू कैन नॉट गिव द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू योर फ्रेंड बट डोंट अबैंडन देम. फिर जब आप वापस आओगे ना तो यू विल लूज आउट ऑन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो आपने बनाया भी होगा किसी के साथ. दैट्स ट्रू. बहुत ही फ्रजाइल होती हैं ये रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स. फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स के बारे में कोई बात भी नहीं करता. मुझे ऐसा लगता है वो भी उतना ही हर्ट करते हैं आपको जितना आपको एक ब्रेकअप हर्ट करता है. आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड ओनली. उसने मेरे को भेजा था, उसमें लिखा हुआ था डू यू थिंक दैट वील बी फ्रेंड्स फॉर एवर. मैंने कहा आई रियली विश दैट आई रियली वॉन्ट यू टू बी इन माई लाइफ बिकॉज आई मैनिफेस्टेड दिस फ्रेंडशिप इन अ वे. मैं तेरे को बोलती नहीं रहती थी आई मिस मैं एक्चुअल में ना अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी इस चीज़ को खत्म ना होने के लिए. बी इट आगे जाकर तेरी लाइफ में कोई पार्टनर भी आएगा कुछ भी होगा. बट आई एम दैट पर्सन दैट आई डोंट गिव अप इजीली. बट मेरा ये चीज़ है अगर मेरे को ऐसे वो पता लगता है ना कि वो मतलब अबैंडनमेंट में कि मेरे को रिजेक्शन अगर हल्की सी फील होती है ना तो मैं खुद एक स्टेप बैक ले लेती हूँ. सो आई लाइक डोंट डू दैट. मैंने उसको बोला रखा तो करियो मत गलती से भी. ये भी मत सोचो कि मैं क्लियर करने भी आऊँगी बिकॉज आई डोंट. एंड इवन विद कृतिका ऑल्सो और मम्मा पापा ऑल्सो अगर मैं एक कॉल करती हूँ और कोई फ़ोन नहीं उठाता ना तो मैं दूसरा कॉल करना प्रेफर नहीं करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है ओ इसने मेरा पहला फ़ोन क्यों नहीं उठाया. तो आई एम दैट पर्सन विद माई पेरेंट्स विद सिस्टर ऑल्सो. सो लाइक I am that in a relationship and friendship also. So I feel rejection very बहुत जल्दी. मैंने कहा ऐसा कभी मत करियो. देख बाकी सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगी. I know partner is important. But तू ऐसे करना जब भी अगर तेरे को ऐसे लगता है मतलब मुझे इस चीज़ में एक्चुअली हेल्प करिए कुछ लगता है मुझे मैं तो आई टेल दैट पर्सन. क्योंकि फिर आपको लगता है आपने अपना 100% दिया है. आई ट्राइड फिक्सिंग दिस फ्रेंडशिप 3-4 टाइम्स. फिर अगर उसके बाद उस पर्सन डिसाइडेड कि यार हाँ देखती हूँ देखता हूँ बाद में करते हैं ये करते हैं वो करते हैं. बट यू नो यू गिवन योर 100% ना. नाउ अगर मुझे पता ही नहीं होगा तुझे क्या बुरा लग रहा है तो हाउ विल आई फिक्स इट. हाँ आई हैव टोल्ड हिम दिस. I've told him that this is my problem. अगर आगे जाकर कभी हमारी उसमें फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम भी आएगी ना यही रीजन होगा दैट मैं हमेशा कभी गिव अप नहीं करती. बट आई फील दैट थिंग वेरी इजीली. सो यू शुड नॉट डू दैट. सो वो सब मेरे को एक्चुअल में लगता है लाइक कि आई मैनिफेस्टेड दिस फ्रेंडशिप इन माई लाइफ. लाइक सडनली आई एम बेस्टीज विद समवन हूम आई न्यू फॉर 10 years एंड एकदम से वो पूरा बॉन्ड वापस से रिवाइव हुआ है सब कुछ हुआ है. सो इट्स रियली गुड. आई विल मैनिफेस्ट अ गर्लफ्रेंड ऑल्सो. हमारा ट्रायो बन जाएगा. मुझे लगता है 3 वाली फ्रेंडशिप कभी टिकती नहीं है. नहीं 1 guy friend 2 girlfriends. मतलब 1 गर्लफ्रेंड 1 guy friend. 3 people in a group I think है ना. मैंने बहुत मीम्स भी देखे हैं ऐसे. मुझे पर्सनली भी लगता है ऐसे when there are 3 people in the group वो टिकती नहीं है फ्रेंडशिप. मुझे लगता है एक उसमें से किसी को लग रहा होता है कि मुझसे कम बात कर रहे हैं मुझे कम बुला रहे हैं. I don't know if that's true. But guys hopefully you enjoyed this one. नवरात्रा स्पेशल था बट हमने फ्रेंडशिप स्पेशल बना दिया इसको. But I hope you're in festive spirits. You guys are having fun and we will see you in the next one. Bye. एकदम से सिसी ने खत्म कर दिया. नहीं करना था. नहीं करना था. एटलीस्ट मैं एंड तक तो वो लेकर जाकर खत्म करती थी. यार गाइड
sorry guys, we'll keep this clip. This was abrupt. Really apologize for that.